Good morning, students. I hope you all are hale and hearty. I am Benazir Fatima and I'll be taking your chemistry classes for this session 2020-2021. Due to serious pandemic COVID-19, we are not able to learn in the physical environment of classroom. Therefore, we are learning through online platform. I have provided you video lectures. In case of any doubt, any query related to the content, you can contact me on my WhatsApp number which is provided on Google Classroom. So dear students, let's start with the class. Put in all your efforts and perform above your caliber. God bless you. Thank you. Good morning, dear children. You all are welcome in this class. In the last classes, you have completed first chapter of chemistry, that is matter in our surroundings. Now in this week we will continue with the second lesson, that is matter around us pure? The second lesson of your science book is matter around us pure. But before proceeding, I want to know your knowledge about the subject. As a chemistry teacher, I can tell you that this subject, chemistry, is a very interesting subject. The present day chemistry has provided man with more comforts for a healthier and happier life. It has given fuels, metal alloys, fertilizers, medicines, energy sources, polymers, building materials like cement and all to us. And gradually we will study all these things. Right? So I want to know your knowledge about the subject. In the very first class, I usually ask from my student that what do you know about chemistry? What is chemistry? In my all classes, my first question is always this, that what is chemistry? And most of the students answer that chemistry is the study of chemicals, ma'am. So my dear children, let me clear that chemistry is just not the study of chemicals. It is that branch of science that deals with the study of matter, its physical and chemical properties, its chemical composition, and the physical and chemical changes occurring in it, and also the energy changes occurring in it. I am repeating again that chemistry is just not the study of chemicals. It is that branch of science which deals with the study of matter. तो केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं, या केमिस्ट्री को बोला जाता है स्टडी ऑफ मैटर. और इस मैटर में जो भी कुछ हो रहा है, यानी कि इसमें जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसकी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, उन सारी स्टडी के साथ, उन सारे चेंजेस के साथ केमिस्ट्री डील करती है. तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? द स्टडी ऑफ मैटर. अब वी नो दैट इन यूनिवर्स ओनली टू थिंग्स एग्जिस्ट. अगर हम पूरे यूनिवर्स में बात करें, है ना, तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं पूरे यूनिवर्स में. वी हैव, or we can say that universe is made up of matter and energy, and most of the time the source of energy is this matter only. So the entire universe is made up of matter, and chemistry is the study of this matter only. So what is chemistry? Is the study of matter. So this is the only reason that when you have now formally started with chemistry as a subject, the first two chapters of your book deals with it only. I mean, deal with matter, its classification, its physical and chemical properties, and the physical and chemical changes it undergoes. In the last chapter, you learned about matter and its types. 3 तरह के टाइप्स आपने पढ़े पिछले चैप्टर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, हमारे प्लैनेट पे जो 3 तरह के मैटर के फॉर्म्स मिलते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट ऑन आवर प्लैनेट अर्थ. नाउ दिस क्लासिफिकेशन, दैट व्हेन मैटर is divided
into three groups: solid, liquid and gas. So this classification was done on the फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं मैटर के: सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब इस सेकेंड चैप्टर में इस मैटर अराउंड अस प्योर हम जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे या हम जो मैटर को क्लासिफाई करेंगे वो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का होगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. अब हम इस चैप्टर में केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करेंगे. एंड व्हेन वी क्लासिफाई ऑन दिस बेसिस देन द इंटायर मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. बट बिफोर दैट लेट मी आस्क यू, व्हाट इज मैटर? मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैटर को हम बोलते हैं कि मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट वी कैन सी, टच और टेस्ट. और जो बुक की डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास. अब इस चैप्टर से हम मैटर को जो जानेंगे वो मैटर को हम सब्सटेंस बोलेंगे. सब्सटेंस, सारे सब्सटेंसेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे यूनिवर्स में, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वो मैटर या सब्सटेंस है. और जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑन केमिकल composition. So the entire substances or the matter can be divided into two groups: either pure substances or impure substances, जिनको हम mixtures भी कहते हैं. mixtures. तो जब हमने फिजिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया था तो हमारे पास तीन टाइप आए थे: सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. अब जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स आ रहे हैं, यानी पूरे मैटर को हम सिर्फ दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं. और वो दो ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं? एक है प्योर सब्सटेंसेस का ग्रुप और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंसेस का ग्रुप या मिक्सचर्स का ग्रुप. अब ये जो चैप्टर है इसमें जब पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे तो जो लर्निंग आउटकम की हम बात करते हैं कि आप क्या सीखेंगे इस चैप्टर के एंड में, आपकी नॉलेज क्या होगी, आप क्या चीज़ें सीखेंगे. तो बेसिकली आप जो बातें करेंगे वो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में आप जानेंगे. प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं: एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. तो आपके पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की इन्फॉर्मेशन होगी और आपके पास मिक्सचर्स की इन्फॉर्मेशन होगी. मिक्सचर्स, कितनी तरह के मिक्सचर्स होते हैं, और अगर हमें इन मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो तो हमारे पास सेपरेशन की क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं. यानी अगर हमारे पास एक मिक्सचर बना हुआ है, से हमारे पास सैंड और वाटर का अगर हमारे पास मिक्सचर बना हुआ है, तो अगर हमें उसे सेपरेट करना है तो हम किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. तो हम इस चैप्टर में सेपरेटिंग मेथड्स भी पढ़ेंगे कि मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की क्या मेथड्स हैं. उसके अलावा इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस. मैटर में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस क्या हैं और केमिकल चेंजेस क्या हैं, हम उनकी बात करेंगे. और आई टोल्ड यू प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे, यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं. और इसके अलावा हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे कि हमारे पास कितनी तरह के सॉल्यूशंस आते हैं. और जो आपने सुन रखा होगा टर्म्स डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं. तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको जो इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी वो होगी अबाउट सॉल्यूशंस, mixtures, elements, compounds, alloys, and along with this the physical and chemical changes occurring in matter. चलिए, तो मैटर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन. एंड हमने बात करी कि जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे सारे सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस आते हैं, या तो प्योर सब्सटेंसेस आते हैं या इम्प्योर सब्सटेंसेस आते हैं. अब हेयर वी विल नॉट मिक्स अप दीज टर्म्स, यानी प्योर और इम्प्योर जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं, वी विल नॉट मिक्स अप दीज टर्म्स विद अडल्ट्रेशन. यूजुअली डेली लाइफ में क्या होता है हमारे पास, जब हम बात करते हैं कि प्योर क्या है, तो प्योर का मतलब हमारे लिए क्या होता है, समथिंग विच कंटेन्स नो अडल्ट्रेंट्स इन इट. जैसे हम कहते हैं प्योर मिल्क है, प्योर घी है, प्योर हनी है. बट नाउ इन व्यू ऑफ केमिस्ट्री
द मीनिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस इज एंटायरली डिफरेंट। यहाँ पे प्योर का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी अडल्ट्रेंट नहीं पड़ा हुआ है, या इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें कोई मिलावट करी गई है। जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर को क्लासीफाई करते हैं, सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करते हैं, तो जो प्योर का मतलब है वो क्या आता है, व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस। आपके एनसीईआरटी में भी जो पहला क्वेश्चन दिया है वो यही दे रखा है, डिफाइन प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस केमिस्ट्री में क्या है? प्योर सब्सटेंसेस हम ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, which are made up of only one kind of particle, made up of only one kind of particles. And here particles means atoms or molecules, atoms or molecules. So what are pure substances? Pure substances are all those substances which are made up of only one kind of particles. वो एक ही तरह के particles से मिलके बने होंगे। particles atoms हो सकते हैं, particles molecules हो सकते हैं। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है उसमें सिर्फ हमारे, अगर ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्योर सब्सटेंस। व्हाई प्योर सब्सटेंस? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप of only the molecules of CO2 or carbon dioxide. So what are pure substances? When a substance is made up of only one kind of particles, and particles can be atom of molecules, so the substances are called pure substances. For example, if we talk about oxygen, we talk about gold, we talk about iron element, we talk about carbon dioxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली वी कैन से अ कंपाउंड, और इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे CO2 के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं हमारे? जब हम इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो इम्प्योर सब्सटेंसेस आर ऑल दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ 2 और more than 2 kind of particles, which are made up of 2 or more kind of particles. अब अगर हमारे पास बिल्कुल प्योर मिल्क भी है, यानी उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल भी अडल्ट्रेंट नहीं है, लेकिन वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस में। तो इम्प्योर सब्सटेंस का अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, राइट? कितना भी प्योर मिल्क हो, 100% प्योर मिल्क, मतलब अडल्ट्रेशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि अगर कुछ भी उसमें मिलावट नहीं है, कितना भी प्योर मिल्क है, लेकिन वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम उसको क्लासीफाई करेंगे तो हम उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हमने क्या बताई कि इम्प्योर सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, राइट? A milk is an impure substance. Why milk is an impure substance? Because it contains many substances in it, like it contains water. मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? मिल्क में वाटर प्रेजेंट होता है, मिल्क में फैट प्रेजेंट होता है, मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है, मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, राइट? तो मिल्क कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेज इन इट, मिल्क कंटेन्स मेनी पार्टिकल्स इन इट, राइट? तो मिल्क हमारा जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस में जाएगा। फिर से क्लियर करते हैं पॉइंट को कि मैटर को जब हम उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के सब्सटेंसेस आते हैं, या सारा मैटर 2 ग्रुप में क्लासीफाई हो जाता है। एक है प्योर सब्सटेंसेस का ग्रुप और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंसेस का ग्रुप। ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, हम किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, हम प्योर वाटर की अगर बात कर रहे हैं, H2O, अगर हम इन सब की बात कर रहे हैं तो इनको हम बोल रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस। क्यों प्योर बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ, अगर वाटर मॉलिक्यूल है या CO2 है हमारे, तो दे आर मेड अप ऑफ, वाटर कंपाउंड है या CO2 कंपाउंड है, तो दे आर मेड अप ऑफ ओनली दीज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। लेकिन मिल्क, अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं तो milk contains many substances like water, sugar, proteins, etc. in it. So it will be considered as impure substances when we classify the matter on the basis of chemical composition. All right, children, let's understand this in a bit detail.
अभी हमने बात करी दैट CO2 इज़ अ प्योर सब्सटेंस। तो CO2 अगर एक प्योर सब्सटेंस है, उसको हम अगर शो कर रहे हैं एक थोड़ी सी एक्टिविटी करके, तो सपोज हमने CO2 के 3 सैम्पल्स ले लिए हैं, और वी कैन से हमने ऐसे सैम्पल्स 3 ले रखे हैं जहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन से CO2 ऑब्टेन हो रही है। सैम्पल 1 में जो CO2 हमारे पास आ रही है वो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो आ रही है। इसके लिए अगर हम केमिकल रिएक्शन भी लिख लें तो जो केमिकल रिएक्शन आती है CaCO3 को हीट करने से, वो ये रिएक्शन आती है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो सैम्पल 1 में जो हमें CO2 मिल रहा है वो हमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से मिल रहा है। सैम्पल 2 में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को अगर हीट कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमें CO2 मिल रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि जब भी बाइकार्बोनेट के सॉल्ट्स को आप हीट करते हैं, जब भी, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि आप बाइकार्बोनेट के सॉल्ट्स को जब भी हीट करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो प्रोडक्ट्स होते हैं एक कार्बोनेट का सॉल्ट। यहाँ पे हमने सोडियम मेटल लिए तो सोडियम का कार्बोनेट आ जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, प्लस वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, और बैलेंस करेंगे तो दिस विल बी 2 NaSCO3। तो सैंपल 2 में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से मिल रही है। नाउ इन सैंपल 3 वी आर गेटिंग CO2 बाय बर्निंग कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल कंबशन की रिएक्शन है कि हमने कार्बन ले लिया, जो किसी भी सोर्स से कार्बन आ रहा हो, इट कैन बी मीथेन ऑल्सो, इट कैन बी फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन है, उसको अगर हम O2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग CO2। तो वी हैव 3 samples. We have 3 samples. Sample 1 in which we are getting CO2 by heating calcium carbonate. In sample 2 we are getting CO2 by heating sodium bicarbonate. And in sample 3 we are getting CO2 by the reaction of combustion. We are saying that CO2 is a pure substance. Why it is a pure substance? Because irrespective of the source from which it is obtained, it always contains carbon and oxygen in it. Irrespective of the source, कहीं से भी आ रहा है, चाहे यहाँ से आ रहा हो, चाहे इस तरह से आ रहा हो, चाहे ऐसे आ रहा हो, या इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहाँ से CO2 प्रोड्यूस होता हो। तो irrespective of the source from which it is obtained, it always contain carbon and oxygen in it and combine in a fixed ratio by mass. किस तरह से आता है? We know कार्बन एंड ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे O2 के फॉर्म में है। कार्बन का मास इज 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन के एटम इन्वॉल्व है तो इट विल बी 32। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हम 4 से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 3 12 और 4 8 32। तो whenever carbon and oxygen combine in a ratio of 3:8, carbon dioxide is formed. तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, उसमें हमेशा जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एटम्स इन्वॉल्व हैं, वो हमेशा फिक्स होंगे, और उसमें जो रेशियो होगा बाई मास वो भी हमेशा फिक्स होगा। तो हम इसीलिए प्योर सब्सटेंसेस को कहते हैं कि ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए हों वो हमारे लिए प्योर सब्सटेंसेस हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्योर सब्सटेंसेस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स अगर 100% प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना, तो हमेशा उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो फिक्स होंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब हम बात करें, अगर हमारे पास जो हमने कहा कि मिल्क पूरा प्योर मिल्क है, 100% प्योर मिल्क है, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्योर नहीं है, उसको हम इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ठीक है, तो 100% प्योर मिल्क इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। व्हाई? बिकॉज द रेशियो ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट इज नॉट फिक्स। जो उसके अंदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, अभी हमने बात करी कि मिल्क में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मिल्क में हमारे पास वाटर है, मिल्क में हमारे पास फैट्स हैं, मिल्क में हमारे पास प्रोटीन्स हैं, राइट। तो इनका रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होगा। जहाँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो है वो फिक्स है, ये रेशियो फिक्स नहीं होगा। यू कैन कलेक्ट 3 different samples of milk and you will find that they will vary in the percentage composition of their constituents, right? तो some other examples of mixtures अगर हम बात करें,
जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, हमने बात करी थी कि वो इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो अगर हम कुछ और ऐसे ही मिक्सचर्स की बात करें या इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, तो जो दो बहुत ही बेसिक से एलिमेंट्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड हैं, वो है एक एयर, ठीक है, और दूसरा है वाटर। वाटर में भी टैप वाटर आ जाता है, सी वाटर आ जाता है। तो ये दोनों कैटेगरीज हैं, चाहे वो टैप वाटर हो और चाहे वो सी वाटर हो। तो जो एयर है वो भी एक मिक्सचर है। जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने एयर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। एयर को जो एक सेंटेंस में डिफाइन करते थे वो कहते थे एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो वो होमोजेनस मिक्सचर है, राइट, एक मिक्सचर है। और जो टैप वाटर है वो भी मिक्सचर है। जो डिस्टिल वाटर होता है वो जो है उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो प्योर होगा। लेकिन टैप वाटर में वाटर के साथ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब वाटर के साथ सॉल्ट्स भी आ गए, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक से ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो हमारे लिए मिक्सचर हो जाएगा। सिमिलरली जो सी वाटर है उसमें वाटर के साथ वहाँ पे भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, तो सी भी जो है वो हमारा हो जाएगा एक मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस, राइट। इसके अलावा और अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो रॉक्स, टी, कॉफ़ी, soil, all these are the examples of mixtures or impure substances, right? So a mixture does not have a fixed composition. A mixture does not have a fixed composition, and most of the matter around us exist as mixtures of two or more pure substances. I am repeating again that most of the matter around us exist as mixtures of two or more pure substances. And now recall the name of the chapter. The name of the chapter is matter around us pure? Is matter around us pure? So the answer is no. Most of the matter or substances around us are not pure. They exist in the form of mixtures. तो हम फिर से वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि जो मैटर है वो हमारे पास मैटर, जिसको हमने सब्सटेंस भी बोला था, वो हमारे पास दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइदर प्योर फॉर्म होगी या फिर इम्प्योर फॉर्म होगी, और इम्प्योर फॉर्म को हम बोल रहे हैं मिक्सचर्स, और जिसके कॉमन एग्जाम्पल हैं एयर, सोइल और सी वाटर एसेट्रा। और जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो हमारे पास दो हैं, आइदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, राइट। कंपाउंड्स में भी हमने एग्जाम्पल देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का। एलिमेंट्स की बात करें तो सोडियम, आयरन, गोल्ड जिसका सिंबल AU होता है, सिल्वर एसेट्रा, ये सब एलिमेंट्स आते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स को हम प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रख रहे हैं। क्यों प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रख रहे हैं हम एलिमेंट्स को? बिकॉज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स हमेशा एक ही तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा एक ही तरह के एटम से मिलके बने होंगे। और जब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कंपाउंड्स में जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स होंगे, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनना है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा, वो कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कंपाउंड्स में जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, और जब वो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो हमेशा, जैसे भी हमने CO2 में बात करी थी कि जब भी ये कंबाइन करेंगे CO2 के फॉर्मेशन के लिए तो इसमें एक फिक्स रेशियो बाई मास होगा। और मिक्सचर्स में कभी भी रेशियो जो है, जो भी मिक्सचर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होता है। आई होप बच्चों बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। जब भी लेसन का नाम होता है, चैप्टर का नाम होता है, तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में कभी नहीं होता। लेकिन आपका ये जो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, इसमें चैप्टर का नाम अपने आप में क्वेश्चन के फॉर्म में है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे तरफ जो जितना मैटर हमारे आसपास मिल रहा है क्या वो सारा का सारा मैटर प्योर है?
तो आई होप अब आपको आंसर मिल गया होगा कि हमारे आसपास जितना भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, और जो इम्प्योर फॉर्म है या इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स। तो हमें अपने आसपास अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको सारे सब्सटेंसेस जो मिलेंगे वो मोस्टली मिक्सचर्स ही मिलेंगे, राइट। इवन अगर हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं तो वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी 100% प्योर गोल्ड से नहीं बनाए जाते हैं, उसमें दूसरी मेटल्स को मिक्स किया जाता है और उसके बाद हमारे पास गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बन के आते हैं। तो वो जो गोल्ड है जिससे हम ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं उसमें हम दूसरी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, तो वो अब प्योर सब्सटेंस नहीं रहा, वो हमारे लिए मिक्सचर हो गया है, राइट। जो टेबल सॉल्ट हम खा रहे हैं उसमें भी NaCl होता है, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला, और उसमें भी NaCl के अलावा और भी कई सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉमन सॉल्ट है वो भी एक टेबल सॉल्ट जो है वो भी एक प्योर कंपाउंड नहीं है, वो हमारे लिए एक मिक्सचर है। तो जितना मैटर हमारे आसपास है वो सारा का सारा मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं एयर, सॉइल, सी वाटर एक्सेट्रा, राइट। इवन जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं, जो चाय कॉफ़ी आप पीते हैं, वो सब मिक्सचर्स की ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें रेशियो कोई फिक्स नहीं है। शुगर और उसके अलावा जो हम उसके अंदर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो कम या ज़्यादा होता है। हम फ्लेवर के लिए जो कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर रहे हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो कभी भी फिक्स नहीं होंगे। लेकिन प्योर कंपाउंड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो प्योर कंपाउंड के फॉर्मेशन में हमेशा जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो फिक्स रेशियो बाई मास से करेंगे। अगर ये फिक्स रेशियो बाई मास चेंज हो जाता है तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बननी है, फिर से दिखा दें कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। तो इसमें एक कार्बन और एक ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो 12:16 आ रहा है। उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4 से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 3 12 और 4 4 16। तो व्हेनेवर कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन अ रेशियो ऑफ 3:4 कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और जब भी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे इन अ रेशियो ऑफ 3:8 तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो प्योर सब्सटेंसेस में हमेशा जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एक फिक्स रेशियो होता है उन एलिमेंट्स के बीच में, फिक्स रेशियो बाई मास होता है। लेकिन मिक्सचर्स में ये रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होता, हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर हमें लेमनेड बनाना है तो अगर हमें मीठा ज़्यादा चाहिए हम उसमें चीनी ज़्यादा ऐड कर देंगे, शुगर ज़्यादा ऐड कर देंगे, और अब अगर हमें उसमें मीठा ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम शुगर की क्वांटिटी को कम रखेंगे। तो लेमनेड जो बन के आता है वो एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जिन चीज़ों से मिलके बन रहा है उनका रेशियो फिक्स नहीं है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि आपको चैप्टर पढ़ाने का पर्पस क्या है तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, और चैप्टर की जो हेडिंग है वो भी हमें क्लियर हो गई होगी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर से उनका पर्पस क्या है, कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो जो मेन हेडिंग्स हैं इसमें हमारे चैप्टर के अंदर वो यही हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ेंगे हम मिक्सचर्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। एंड वी विल सी दैट मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, राइट। और होमोजेनस मिक्सचर्स जो हैं उन्हें हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, सॉल्यूशन का अपना कॉन्सेंट्रेशन होता है, हम उन कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। सॉल्यूशंस भी हमारे 3 तरह के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन, हमें उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इन मिक्सचर्स को हम किस तरह से, अगर मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर हम उन्हें सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेशन की जो टेक्निक्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, और फिर इन्हीं मैटर के अंदर, इन्हीं सब्सटेंसेस के अंदर जब फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं तो वो फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, वो सारी डिटेलिंग हमें इस चैप्टर में करनी है। नाउ वी विल डिस्कस मिक्सचर्स एंड इट्स टाइप्स। मिक्सचर्स यानी कि हमारे इम्प्योर सब्सटेंसेस, डेफिनेशन हमने पीछे करी थी, फिर से देख लें डेफिनेशन क्या है मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स को हम डिफाइन करते हैं कि मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ 2 or more elements
और कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो आपस में केमिकल रिएक्शन ना दें। फॉर एग्जाम्पल एयर को हमने बोला एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वी नो कि एयर में हमारे पास जो मेन गैसेस होती हैं वो हैं नाइट्रोजन 78% और 21% ऑक्सीजन, लेकिन ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। तो एयर एक मिक्सचर है और उसके अंदर हमारे दो कंपाउंड प्रेजेंट हैं, एक है ऑक्सीजन, दो मेन कंपाउंड हैं, इसके अलावा भी और गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो दो मेन गैसेस प्रेजेंट हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एंड वो केमिकल कोई भी रिएक्शन नहीं देंगी, केमिकली इनर्ट होंगी वो। अब इन मिक्सचर्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, या वी कैन से कि मिक्सचर्स को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मिक्सचर्स का जो ग्रुप है उसे हम बोल रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा जो ग्रुप है उसे हम बोल रहे हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस, होमो मीन्स सेम, और हेट्रो मीन्स विच इज नॉट सेम और डिफरेंट। तो लेट्स सी व्हाट आर होमोजेनस मिक्सचर्स। Homogeneous mixtures are also called solutions, right? All those mixtures in which the substances are completely mixed together, they are called homogeneous mixtures. कैसे और सिंप्लीफाई करके हम समझें, आप एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए या फिर 1 चम्मच आप शुगर डाल दीजिए और उसको स्टिर कर दीजिए। जो बनकर आएगा आपके पास ग्लास में उसको हम बोलेंगे मिक्सचर है वो। सपोज आपने वाटर और सॉल्ट ऐड किया था तो वो वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है। अब वो कैसा मिक्सचर है, आपस में दोनों वाटर में सॉल्ट अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, राइट? तो जो मिक्सचर बन के आया उसको हम बोलेंगे कि वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। ऐसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब कि अगर आपने सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया है, सॉल्ट और वाटर को आपस में मिक्स किया है, तो उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। आप फर्स्ट ड्रॉप और उसकी लास्ट ड्रॉप अगर टेस्ट करेंगे तो वो सेम सॉल्टी वाटर होगा, उसका कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि सॉल्ट कहीं पे ज़्यादा और कहीं पर कम हो, या हम अगर एक सैंपल या एक उसमें से स्पून निकाल के टेस्ट कर रहे हैं तो कहीं पे हमें ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है और कभी हमें वो कम सॉल्टी लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो होमोजेनस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। इसके लिए इसीलिए इनके लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है, आइसोट्रॉपिक। होमोजेनस मिक्सचर्स को हम आइसोट्रॉपिक भी कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हमारे वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन हर पोर्शन में सेम आ रहा हो। आइसोट्रॉपिक मीन्स every portion of homogeneous mixture has same properties and composition. तो मिक्सचर का पहला टाइप है होमोजेनस मिक्सचर्स, जिनको हम सॉल्यूशंस भी बोल रहे हैं। सॉल्यूशंस और डेफिनेशन हो गई, एक वर्ड और हो गया इनके लिए कि इन्हें आइसोट्रॉपिक भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं होमोजेनस मिक्सचर्स के? एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है। अलॉय समझते हैं ना, जब दो या उससे ज़्यादा मेटल्स को हम आपस में मिक्स करते हैं तो अलॉय का फॉर्मेशन होता है। अलॉय भी आपके चैप्टर में है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे हम और डिटेल में। जैसे ब्रास एक अलॉय है। तो जितने भी अलॉयज हैं उनको हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और जितने भी हमारे सॉल्यूशंस बन के आ रहे हैं, मतलब सपोज अगर हमने शुगर का सॉल्यूशन बना रखा है, सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रखा है, या कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रखा है, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हमारे जो होंगे वो होमोजेनस मिक्सचर्स होंगे, होमोजेनस मिक्सचर्स। और होमोजेनस मिक्सचर्स को आई टोल्ड यू सॉल्यूशंस भी कहते हैं या फिर ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए या मिक्स हो जाए सॉल्वेंट के साथ, राइट? तो जो सॉल्यूशन है, हम अगर उसकी एक और बात कर लें कि सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ज़्यादातर सॉल्यूशंस हमारे पास जो आते हैं वो होते हैं सॉलिड इन लिक्विड के सॉल्यूशंस। तो जो सॉलिड पार्ट होता है वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और जो लिक्विड पार्ट है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने NaCl का सॉल्यूशन बनाया है तो NaCl का सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होगा हमारा या फिर ट्रू सॉल्यूशन होगा, और उसमें जो सॉल्यूट पार्ट होगा वो होगा NaCl यानी कि सॉल्ट, और जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट होगा जिसमें वो डिसॉल्व हुआ है, राइट? दूसरा टाइप जो मिक्सचर का है वो कहलाता है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। हेट्रोजेनस मिक्सचर्स
हेट्रो आई टोल्ड यू डिफरेंट, तो डिफरेंट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट ये होगा कि जो उनका कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगा, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि ऑल दोज substances which do not mix with each other and does not have a uniform composition, so all those mixtures are called heterogeneous mixtures, yeah, those mixtures in which the substances remain separate, those substances in which those mixtures in which the substances remain separate and do not mix with each other, they does not have a uniform composition, दे आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं तो यहाँ पे आइसो के साथ जो भी हमने यहाँ पे बात करी थी कि होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, यहाँ पे हम एन लगा देंगे, एन या ए जहाँ पे भी लग रहा है वहाँ मतलब एब्सेंट है, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसलिए हम इन्हें एन आइसोट्रॉपिक बोल रहे हैं। तो जितने भी हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं दे ऑल आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एयर हमारा एक होमोजेनस मिक्सचर था, लेकिन पोल्यूटेड एयर जब उसके अंदर सस्पेंडेड पर्टिकुलेट एयर के अंदर जब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं पोल्यूटेड एयर। जैसे और कुछ आके सॉलिड पार्ट, डस्ट पार्ट है ना, वो आके उसके अंदर मिक्स हो गए तो एयर हमारी पोल्यूट हो गई। अब पोल्यूटेड एयर हमारी हेट्रोजेनस मिक्सचर में चला जाएगा, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। इंक एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, सोप सोल्यूशन, बटर, चीज, ब्लड, मिल्क को तो हमने डिटेल में डिस्कस किया ही था, ये सारी चीजें हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में आएंगी। So homogeneous mixtures are called true solutions. True solutions ऐसे सारे solutions जिनमें solute हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, solute part visible नहीं होता है, उन सारे solutions को हम कहते हैं true solutions। अब true solutions भी हमारे तीन तरह के होते हैं, true solutions भी हमारे तीन तरह के होते हैं। solid solutions, सॉलिड सोल्यूशन जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अलॉय। अलॉय जो है वो हमारे सारे के सारे सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल NaCl का सोल्यूशन जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं। ब्राइन सोल्यूशन यानी हमने NaCl लेके वाटर में मिक्स कर दिया और हमारे पास जो सोल्यूशन बन के आएगा उसको हम बोलेंगे ब्राइन सोल्यूशन, या फिर शुगर का सोल्यूशन आप बना लीजिए, वो सारे के सारे आपके लिक्विड सोल्यूशंस हो जाएंगे। और तीसरा हमारा कैटेगरी है गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है इस गैसियस सोल्यूशन का, तो क्या आप बता पाएंगे? गैसियस सॉल्यूशंस मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सिर्फ हमारी गैसेस मिक्स्ड हो, राइट। तो ऐसा क्या एग्जांपल हो सकता है? एयर, अभी हमने बात करी थी, एयर जो है वो हमारा एक गैसियस सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन के जो टाइप आ रहे हैं वो आ रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन अभी हमने बात करा कि सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमारे सॉलिड हो तो वो सॉल्यूशंस हमारे कहलाते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो तो ऐसे जो सॉल्यूशंस बन के आते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे गैसेस हों तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशंस। तो तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, और एग्जांपल्स भी हमारे पास आ गए। अब व्हेन वी टॉक अबाउट हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, ये हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, दो तरह के होंगे। एक कहलाते हैं सस्पेंशंस, ठीक है। सस्पेंशंस यानी जो सॉल्यूट पार्ट है वो आपको सस्पेंडेड दिखेगा सॉल्वेंट के अंदर, नेकेड आई से विजिबल होगा, वो सारे के सारे सस्पेंशंस हैं। एग्जाम्पल, पानी लीजिए, उसमें आप चॉक पाउडर डाल दीजिए या फिर थोड़ी सी सॉइल डाल दीजिए, आपको दिखाई देगी, वो चॉक के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, वो सॉइल के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। ऐसे सारे के सारे जो हमारे पास मिक्सचर्स बन के आते हैं उनको हम बोलते हैं सस्पेंशंस। और जो दूसरी कैटेगरी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है कोलॉइड्स और कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन भी हमारे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। कैसे डिफरेंट होते हैं ये सस्पेंशन और ट्रू सोल्यूशन से? ट्रू सोल्यूशन की तरह बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, सस्पेंशंस की तरह इसमें हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है ना।
ये ओपेक होंगे और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे। जैसे ब्लड, यू नो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, राइट, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। और जो ब्लड है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन भी नहीं है, तो ब्लड जो है वो एक कोलोइडल सोल्यूशन में चला जाता है। कोलोइडल, मिल्क एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन नहीं बन रहा है, ओपेक है, राइट। और जो उसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, वाटर, वो आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, राइट। और क्लियर सोल्यूशन भी नहीं बन के आएगा, ओपेक होगा सोल्यूशन। सोल्यूट यानी कि जो उसके अंदर प्रोटीन एंड ऑल प्रेजेंट है, उसको आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे, तो वो आपका सोल्यूशन जो है वो सस्पेंशन की तरह नहीं है, ट्रू सोल्यूशन की तरह भी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज, वो कोलॉइड्स में चला जाता है। इसको हमें अभी बाद में और डिटेल में समझना है कि सस्पेंशंस, कोलॉइड्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। Children, this is the first page of the notes which I provided in Google Classroom. You can see the flow chart is there. अभी तक हमने जितना भी किया है, अगर हम उसको समराइज करें तो हमने क्या बात करी है, हमने ये बात करी है कि जितना भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, एवरीथिंग और यूनिवर्स, राइट, उसे हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि जो कुछ भी यूनिवर्स में है वो या तो मैटर है या फिर एनर्जी है, ठीक है। तो एवरीथिंग जो भी है हमारा यूनिवर्स, वो इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मैटर, जिसको हमने एक और वर्ड सीखा कि हम सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, या फिर एनर्जी। एंड आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द टाइम द सोर्स ऑफ एनर्जी इज मैटर ओनली। अब हम इस मैटर या सब्सटेंसेस का केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे थे, और जब हमने इसको केमिकली क्लासिफाई करके देखा तो हमने कहा कि हम सारे सब्सटेंसेस को या सारे मैटर को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, आइदर मिक्सचर्स जिन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, या फिर प्योर सब्सटेंसेस। तो जितना भी मैटर हमारे आसपास है वो हमें इन्हीं दोनों फॉर्म में मिलेगा, या तो मिक्सचर्स के फॉर्म में मिलेगा या प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में मिलेगा। फिर हमने मिक्सचर्स को आगे क्लासिफाई किया, देन हमने देखा कि मिक्सचर्स जो है वो हमारे दो तरह के हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, राइट। होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स के लिए हमने एक और वर्ड यूज किया, सॉल्यूशंस, और फिर हमने उनके भी ग्रुप किए कि कितने तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस हैं और गैसियस सॉल्यूशंस हैं, राइट। उसके बाद हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की हमने बात करी, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर हमारे पास दो तरह का आया, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो प्योर सब्सटेंसेस हमारे एलिमेंट्स हैं या फिर प्योर सब्सटेंसेस हमारे कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स जो भी पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, और उन 118 एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया गया है। तो वो सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, और वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। और वो क्यों प्योर सब्सटेंसेस हैं? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। फिर कंपाउंड्स की हम बात करें, प्योर कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी कि जब कॉम्पोजिशन उसमें फिक्स होगा, जैसे कि प्योर वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब के सब हमारे कंपाउंड्स हैं, राइट। और कंपाउंड्स के भी ग्रुप आते हैं। कंपाउंड्स को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, एक हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इस फ्लो चार्ट में जो वर्ड अभी हमारे पास क्लियर नहीं है कि सस्पेंशन और कोलॉइड्स क्या है, वही हमें आगे अपनी क्लासेस में पढ़ना है कि सस्पेंशन, कोलॉइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब क्या है। तो आज की क्लास को हम जो एंड करेंगे वो हम एक एक्टिविटी के साथ एंड करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ सेकेंड लेसन। तो एक्टिविटी 2.1 है। वो एक्टिविटी में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंटायर क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और 4 बीकर्स प्रोवाइड कराए हर ग्रुप में। ये कुछ मैंने इस तरह से दिखाया है कि ये बीकर ए है, बीकर बी है, बीकर सी है और बीकर डी है, ठीक है। बीकर ए में 50 ml ऑफ वाटर लेके 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट हमारा सॉल्ट है, इसको मिक्स किया है 50 ml ऑफ वाटर से, और जो कॉपर सल्फेट का अमाउंट रखा है वो रखा है 1 स्पैचुला, ठीक है। दूसरे बीकर में क्या किया है, 50 ml वाटर रखा है, वाटर की क्वांटिटी सेम है, जो बीकर ए में है उतना ही बीकर बी में भी है वाटर, लेकिन कॉपर सल्फेट का अमाउंट बढ़ा दिया है, कॉपर सल्फेट अब हो गया है 2 स्पैचुला, ठीक है। जो सी ग्रुप वाले बच्चे थे
उनके पास जो बीकर है, जो बीकर सी है, उसमें जो लिया है वो वाटर लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, लेकिन साथ में एक और कंपाउंड ऐड कर दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को ऐड कर दिया है। और यहाँ बीकर डी में भी वही सारा सब्सटेंसेस रखे हैं, वाटर है, KMnO4 है, कॉपर सल्फेट है, लेकिन जो अमाउंट है वो इससे चेंज है, इसमें अलग अमाउंट है, इसमें अलग अमाउंट है, दोनों में डिफरेंट अमाउंट लेके इन्होंने ये 4 हम कह सकते हैं मिक्सचर्स को प्रिपेयर किया है। अब व्हाट विल हैपन जब हम इसमें बात करेंगे, ये इस एक्टिविटी में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि किस बीकर में होमोजेनस मिक्सचर मिलेगा और किस में हेट्रोजेनस मिक्सचर मिलेगा। जो आज की क्लास में हमने यहाँ तक बात करी थी कि होमोजेनस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है, तो जब हम एज पर द डेफिनेशन देखेंगे और बीकर ए की बात करेंगे, तो जो बीकर ए है उसमें कॉपर सल्फेट और वाटर लिया है। कॉपर सल्फेट ईजिली वाटर में डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व कॉपर सल्फेट का सॉल्ट ब्लू इन कलर होता है, तो डिजोल्व होने के बाद ये एक लाइट ब्लू कलर का या ब्लू कलर का सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी कम है तो कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगा, लाइट कलर आएगा, और जो सोल्यूशन बन के आएगा उसका कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा, और जब कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है तो जो सोल्यूशंस बन के आते हैं वो होमोजेनस होते हैं। तो इस एक्टिविटी में वो यही पूछ रहे हैं कि किस बीकर में किस तरह का हमें मिक्सचर मिलेगा। तो यहाँ जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा होमोजेनस मिक्सचर, और होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, बीकर बी की अगर हम बात करें तो बीकर बी में 50 ml वाटर रख के 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट डाला था। एक ही सॉल्यूट पार्ट डाल रखा है, कॉपर सल्फेट डाल रखा है, बस कॉपर सल्फेट का अमाउंट बढ़ गया है, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। जो कॉम्पोजिशन आएगा इसमें भी यूनिफॉर्म होगा, जितना कॉपर सल्फेट ऊपर की तरफ हमें ब्लू दिखाई देगा उतना ही नीचे की तरफ भी ब्लू दिखाई देगा। कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा, और कॉम्पोजिशन अगर यूनिफॉर्म है तो फिर जो सोल्यूशन हमारे पास बन के आते हैं उनको अगेन हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस सोल्यूशन। राइट, बस ये है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट अमाउंट कम था तो जो ब्लू कलर आएगा वो थोड़ा सा कम होगा, लाइट होगा, और यहाँ पे जो ब्लू कलर आएगा वो थोड़ा सा डार्क होगा। Let's talk about beaker C and D. Beaker C, we are mixing water, KMnO4 and copper sulfate, and in beaker D we are mixing the same compounds, water, KMnO4 and copper sulfate, but the amounts are different. अब यहाँ पे 2 हमारे पास कंपाउंड्स हैं, कॉपर सल्फेट भी है, KMnO4 भी है। जो सोल्यूशन हमको दिखाई देगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसका कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगा, अलग अलग लेयर्स बन के आएंगी, डिस्टिंक्ट लेयर बन के आएंगी। तो कहीं पे कॉपर सल्फेट ज़्यादा तो कहीं पे KMnO4 कम, कुछ इस तरह से कॉम्पोजिशन आएगा। और जब ऐसा कॉम्पोजिशन होता है तो उसे हम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं कहते, और जब कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो जो सोल्यूशंस बन के आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस। तो इन एक्टिविटी 2.1 दे वर आस्किंग के किस ग्रुप में किस तरह का मिक्सचर बन के आएगा। तो बीकर ए और बी में होमोजेनस मिक्सचर्स बनेंगे और बीकर सी और डी में हेट्रोजेनस मिक्सचर्स मिलेंगे। राइट, अलग अलग लेयर्स बनेंगी। हेट्रोजेनस मिक्सचर का एक और एग्जांपल भी आप कर सकते हैं, ऑयल और वाटर। अगर ऑयल और वाटर को आप आपस में मिक्स कर दीजिए, दोनों की अलग अलग लेयर बन के आती हैं। ऑयल की डेंसिटी जो है वो कम होती है तो वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है, देखा होगा आपने, अगर वाटर और ऑयल को मिक्स करके देखिए तो ऑयल जो है वो सरफेस पे फ्लोट करता है। कुकिंग भी हम करते हैं तो जो खाना पकाते हैं, जो डिशेस हैं, उसके ऊपर ऑयल ऊपर फ्लोट करता हुआ हमको दिखता है। तो जो अलग अलग लेयर्स बन के आ रही हैं उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है, वो कॉम्पोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो जो सोल्यूशन बन के आया वो हेट्रोजेनस है। तो सॉल्ट और वाटर का जो सोल्यूशन होगा वो होमोजेनस मिक्सचर है, लेकिन ऑयल और वाटर का जो हमारा मिक्सचर बन के आएगा वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये चैप्टर का जो टाइटल दिया गया है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका क्या मतलब है, वो यही बताना चाह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स। वो मिक्सचर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमारे पास मिक्सचर्स हैं तो उन मिक्सचर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी तरह के मिक्सचर्स हमारे पास आते हैं। 2 तरह के हमने डिस्कस किए, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। और हमने फ्लो चार्ट में उनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखा कि जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उनको हम सॉल्यूशंस बोलते हैं, और सॉल्यूशंस भी 3 तरह के बनते हैं। और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस और हमारे सस्पेंशंस। तो वी विल एंड today's class over here only on this activity 2.1, and rest of the things we will discuss in next class. Thank you so much, children.